8 का छात्र। मैं आज यहाँ शिक्षक और एआई के अंतर में बताने के लिए इस पर उपस्थित हूँ। सिखलाई वह थी मेरी सेकंड आई। शिक्षक हमारे सेकंड पेरेंट्स होते हैं। मुझे आज भी याद है बचपन में मैंने स्कूल में प्रवेश किया था, तब मेरी टीचर ने मुझे गोद में लिया और एक टॉफ़ी दी थी। मेरे मन में उठने वाले सवालों का जवाब एआई जरूर दे सकता है, लेकिन वो मेरे लिए सटीक और सुटेबल नहीं दे सकता। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मानसिक प्यारे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। यह प्रश्न उठता है कि इनमें से बेहतर कौन है और क्यों। तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि मानव शिक्षक ही बेहतर है। वो मानव शिक्षक की जगह कभी भी नहीं ले सकता। तो हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक की मदद कर सकता है। शिक्षक द्वारा सिखाई गई चीज़ों को बार बार दोहरा सकता है। कुछ बच्चे अकेले घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। एआई चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में समझाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एआई दो शब्दों का शब्द है। आई Dear friends, my name is Dipmark from class 8. Today I have delighted to have this golden opportunity of expressing my views on the topic teacher versus AI on the event of speech competition. The event of speech competition. On the event of speech competition. So first of all, we know that who is a teacher. What is artificial intelligence and who is better among them. A teacher is someone who helps students acquire knowledge, competence and virtue of teaching. A teacher can traditional or teach classes on the computer. The word teacher comes from the Proto-Germanic word "eigen," which means to show. In Old English, this word became "eigen," which means to show or to demonstrate. A teacher helps students to acquire knowledge, capabilities, values, and attitudes. A teacher, they can educate and empower a student to succeed in the class, their personal life, and their career. Artificial intelligence. Artificial intelligence is the intelligence of machines or software. Artificial intelligence is the intelligence of machines and software as opposed to the intelligence of humans and animals. It is the study of computer science. It is the study of computer science that studies and develops intelligent machines. The goal of AI is to be able to do things, to recognize patterns, make decisions, and just like humans. AI can be processed large amount of data in ways unlike humans. So we know that who is a teacher and what is artificial intelligence. Now we have a discussion about who is better among them. So there is a mine opinion that teacher is best because while AI is great at presenting information, a teacher, but it cannot replace the human touch in education. The teacher support and training the students help their adopting challenges, build character, and develop important life skills. The teacher will provide importance and assignments. It is the human touch, but it is the human touch that makes education truly transformative. Teachers encourage and provide a supportive environment for students to thrive. AI cannot prepare a student for the struggles of life like a teacher would. And experiments in the classroom. Some so in the last we know about some good qualities of a good teacher.
First, time management skills. Second, leadership skills. Third, a strong work ethic. Fourth, problem solving abilities. Fifth, high emotional intelligence. Sixth, the knowledge and adaptability needed to educate a teaching mode and method. So I acknowledge the vital role of the teachers in the life of students and education of students and their immense contribution in shaping and making a safe classroom by their work, talent and dedication. Thank you. सर्वप्रथम मेरी तरफ से आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक महोदय, न्याय समिति के सदस्य, अध्यापकों तथा मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा शुभ प्रभात। मेरा नाम मयंक बघेल है। मैं कक्षा 8A का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि क्या AI ह्यूमन्स टीचर्स की जगह ले सकता है। AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या मानव अध्यापकों की जगह ले सकता है। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बच्चों के दिमाग को आकार देने और मूल्य को स्थापित करने, मानवीय संबंध को सिखाने का भी काम शिक्षक करते हैं। मानवीय संबंधों को सिखाने का काम भी शिक्षक करते हैं। यह सब कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कर पाना असंभव है। मानव शिक्षक दया, ज्ञान और अनुकूलशीलता का एक अपूर्ण मिश्रण है जिसे मशीनों द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है। शिक्षा एक मानवीय अनुभव है जो संबंध या सहयोग से पनपती है। कक्षा में छात्राएं वाद विवाद, समूह अध्ययन ऐसे रास्ते हैं जो छात्रों को एक दूसरे से भी सीखते हैं। अलग अपने दृष्टिकोण में एक दूसरे को बताते हैं। आपस में एक दूसरे के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। AI शिक्षकों के विकल्पों नहीं हो सकते हैं, लेकिन AI शिक्षकों के सहायता या सहकर्मी जरूर बन सकते हैं। AI शिक्षकों का काम आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। AI प्रशासनिक कार्यों में शिक्षकों की सहायता कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने निसंदेह शिक्षा में बहुत उत्तेजनित प्रगति की है, लेकिन ये हमारी मानव शिक्षकों की जगह नहीं ले सकता है। शिक्षा एक बुद्धिमानी यात्रा है जो ज्ञान के प्रशासन से आगे बढ़ती है। अतः AI को एक सहायक, एक तकनीकी के सहयोगी के रूप में अपनाया जा सकता है। यह शिक्षण अभ्यास को बढ़ा सकता है। धन्यवाद। मेरे सभी शिक्षक गणों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम कौशल कुमार यादव है और मैं कक्षा 8B का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक भाषण देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा विषय है गुरु या AI कौन है बेहतर और क्यों। तो सबसे पहले हम एक गुरु और AI का मतलब समझेंगे। गुरु को संसार में दूसरे भगवान के स्थान पर उपाधि देके एक बालक की सक्सेस के पीछे उसके गुरु का ही हाथ होता है। विद्यालय में एक गुरु अपने शिष्यों को संस्कार देता है, उसकी गलतियों को सुधारता है और एक गुरु के प्रति उसके शिष्यों के प्रति एक भावना होती है। वह जानते हैं कि पढ़ाई के साथ ही साथ शिष्यों का
मन का विकास भी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम समझते हैं एआई का क्या मतलब होता है। एआई का मतलब अंग्रेजी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। हालांकि यह भी हम मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है और यह भी वही जानकारियाँ देता है जो एक मनुष्य दे सकता है, लेकिन यह हमें वो संस्कार नहीं दे सकता जो एक गुरु दे सकता है। यह हमारी गलतियों को नहीं सुधार सकता जो एक गुरु सुधार सकता है। इसके पास कोई भावना नहीं होती। तो मेरे विचारों के आधार पर मेरे लिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ और बेहतर रहेंगे, क्योंकि जहाँ तक एक एआई के लाभ है वहाँ तक उसके नुकसान भी होते हैं। पहला नुकसान यह हो सकता है कि अगर मैंने कोई पाठ पढ़ा और उसमें मुझे कोई विषय में डाउट है तो मैं अगर अपने गुरु से पूछूंगा तो वो मुझे समझाएंगे। तब भी मुझे समझ नहीं आता है तो वह मुझे अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं एआई से अपने किसी भी टॉपिक को पूछूंगा तो वह मुझे उन्हीं सेम रटी हटाई लाइनों में बताने की कोशिश करेगा, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरा मेरे लिए यह नुकसान हो सकता है कि अगर मैं एआई के द्वारा पढ़ता हूँ, एआई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि, इनमें एआई होता है। तो अगर मैं इनसे पढ़ाई करूँगा तो अगर मैंने इसका अधिक यूज़ कर लिया, अधिक प्रयोग कर लिया तो यह मेरी आंखों पे भी बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं अपने गुरु के साथ पढ़ता हूँ तो मेरा सिर्फ लाभ ही होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर मेरी एक तरफ एआई और दूसरी तरफ मेरे गुरु हैं तो मैं गुरु को चुनना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, न्याय समिति के अध्यक्ष, शिक्षक गणों तथा मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम आयुषी सिंह है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज भाषण प्रतियोगिता में मैं आप सभी के समक्ष यह बताने उपस्थित हुई हूँ कि मानव अध्यापक या एआई में से कौन अच्छा है और क्यों। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज हमारे कार्यों को आसान बनाने के लिए कई मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका अर्थ है कृत्रिम तरीके से की गई बौद्धिक क्षमता। एआई का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। आज तक न्यूज़ चैनल पर प्रतिदिन रात 10 बजे सना नाम की एआई न्यूज़ सुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षा एआई अर्थात रोबोटिक टीचर के ह्यूमन टीचर की जगह ले सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि एआई हमें सिर्फ उतना ही सिखा सकता है जितना उसमें फीड किया गया हो। वह हमें क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकता। एआई में भावनाएं नहीं होती, अतः वह बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार रखना है नहीं सिखा सकता। ह्यूमन टीचर बच्चों को कभी माँ की तरह, कभी बड़ी बहन की तरह, तो कभी दोस्त की तरह विषय के बारे में बताती है। यह कार्य एआई नहीं कर सकता, परंतु एआई द्वारा अध्यापक के कार्यों को बांटा जा सकता है। एआई अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए विषय को दोहरा सकता है। परंतु एआई कभी ह्यूमन टीचर की जगह नहीं ले सकता। टीचर के प्रकाश डालने के लिए अंत में कबीरदास जी का दोहा सुनाना चाहूँगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो सुनाए। धन्यवाद। मैं कक्षा 8 से हूँ। मैं आज यहाँ उपस्थित आप सभी को एआई या फिर टीचर में से कौन सा बेस्ट है उसके बारे में बताने उपस्थित हुई हूँ। पहले एआई के बारे में जानते हैं। क्या आप सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई को जानते हैं? इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ये सुनने वाला मुश्किल विषय लग सकता है, पर ये आसान है। धरती पर सभी जीव जंतुओं में से मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास बुद्धि है, यानी कि इंटेलिजेंसी है। सभी जानवरों और प्राणियों में, सभी जानवरों और पेड़ पौधों में से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास इंटेलिजेंसी है। टीचर्स के पास भी इंटेलिजेंसी है। निकाल कर एक ऐसे कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे हम एआई कहते हैं। एआई का कंट्रोल अभी भी मनुष्य के हाथ में, जिसे एआई मनुष्य से आगे नहीं निकल सका है। अब हम एआई के बारे में जानते हैं। एआई क्या है? एआई कंप्यूटर या फिर मशीनरी
वो सभी काम कर सकती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही कर सकती है। सेंसर्स ने ले ली है जो हमें उनका चारों तरफ की दुनिया को देखने और समझने में मदद करता है। हम जो उससे पूछते हैं वो हमें जानकारी दे सकता है, पर जो सकता है हमें हमारे घर की बत्तियों और तापमान को नियंत्रित भी रख सकता है। एआई वो सभी काम कर एआई एक तकनीक है जिससे वो पूरी धरती के लोगों को जोड़ता है और सभी बीमारियों के बारे में नया नया इलाज बताता है। जैसे ह्यूमंस कभी कभी गलती कर देते हैं, वैसे ही एआई भी कभी गलती कर सकता है, इसलिए हमें एआई का भी सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। अब हम शिक्षक के बारे में जानते हैं। विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। शिक्षक एक दीपक की तरह है जो विद्यार्थी के जीवन को शिक्षक हमें उस तरीके से समझाता है जो हमें कोई नहीं समझा सकता। मेरे शिक्षक के बारे में बात करें तो मेरे पहले शिक्षक मेरी माँ है, जो हमें छोटी से छोटी बातें समझाती है और हमें उस चीज़ के बारे में बताती है जो हमें नहीं पता होती। उसके बाद जब मेरी मुलाकात स्कूल जाना शुरू कर दी, उसके बाद मेरी मुलाकात शिक्षक से होती है। मेरी शिक्षक के बारे में मेरी प्राथमिक शिक्षक के बारे में बात करें तो मेरी पहले शिक्षक मेरी माँ है, उसके बाद मेरे दूसरे शिक्षक मेरे स्कूल के शिक्षक हैं जो मुझे सब कुछ सिखाते हैं। मैं अपने शिक्षक के ऋणी रहूँगी कि उनने मुझे जो भी सब कुछ सिखाया है मैं उसकी आभारी हूँ। अगर मैं अंत में अपने बुद्धिमत्ता से समझाता है और एआई जो मशीन के अंदर जो सिस्टम होता है या फिर कैलकुलेशन के हिसाब से हमें वो रिजल्ट देता है, इससे मेरे हिसाब से शिक्षक ही एक बेस्ट है। मेरा थैंक यू।